Good morning, students. We were doing lesson 6 combustion and flame of your science textbook, right? And we had reached up to this point, exercise 6.2. How do we control fire? कैसे fire को control करना? That is page on page number 68, right? So now let us continue further. How do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops, and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates, right? What is the way the people try to control fire? Now we also have a fire brigade over here, so that it has got a one universal number which is being called, and those people come and start spraying either water or some gases on the burning area. Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service, right? You should be aware. जैसे पुलिस का क्या नंबर है, या फायर सर्विस का क्या नंबर है, या नाउ डेज देर आर डिफरेंट हेल्पलाइंस. एम्बुलेंस का क्या नंबर है? अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है घर में तो आप क्या करोगे, राइट? एम्बुलेंस के लिए आई थिंक 108 है, देन पुलिस के लिए इट इज़ 101. सेम वे फॉर फायर स्टेशन ऑल्सो दे हैव गॉट नंबर्स. स्टैंडर्ड हेल्पलाइंस के नंबर्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे इन लोग के BMC के, राइट? Okay, so that you should be aware of. Now it is important that all of us know the telephone numbers of the fire service. Fire service का number आपको find out करना है, right? और रखना है. See, here there is a picture given कि fire breakout हुआ है कुछ घर के अंदर, building के अंदर, and these fire brigade people have come and they are spraying some water on it to control the fire. Okay, now does your city, town have a fire brigade station? Yes, we do have it. It is near the Sursagar, right? Okay, when a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustion material, right? Combustible material को cool कर देता है पानी, and it helps to put off the fire material so that its temperature brought below its ignition temperature. Ignition temperature से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? Fire is put off. This prevents the fire from spreading. उसको spread होने से बचता है वो. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air. सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश. एयर मतलब उसको ऑक्सीजन तो चाहिए जलने के लिए, राइट? जो हमने स्टडी किया है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई उससे कट ऑफ हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है? फायर बंद हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है. यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 essential requirements for producing फायर. कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? कौन सी बेसिक 3 चीज़ें ज़रूरी है? एक तो इग्निशन टेम्परेचर, फर्स्ट इज़ इग्निशन टेम्परेचर. अगर नहीं होगा तो वो फायर नहीं लग सकता है, राइट? सेकेंड इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो जल सकता है इजीली, वो चाहिए पहले तो ही जल सकता है, राइट? एंड सप्लाई ऑफ एयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? So all these 3 are very important conditions which are necessary to light a fire, right? You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these 3 requirements? These are fuel, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. जब तक ignition temperature नहीं आएगा कुछ भी नहीं जलेगा, right? So these 3 are the basic requirements. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. अब इन तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट आप निकालोगे तो फायर बंद हो जाएगा, राइट? सो इट इज़ बीइंग डन दैट ये तीनों में से कोई चीज़ करने का कोशिश करते हैं, रिमूव करने का कोशिश करते हैं. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel, or both. Notice that the fuel
इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फ्यूल को तो तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, उसको डायरेक्टली निकालने के लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव द फायर। पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल कैसे निकालोगे आप जलते हुए, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट यू कैन डू इज़, to control a fire you must be doing, you must remove the supply of oxygen and bring down the temperature so that the burning stops, right? If for instance a building catches fire, the whole building is the fuel, पूरा building fuel है, right? तो आप बिल्डिंग को रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसलिए बाकी की दो चीज़ें आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टडी हियर, दे आर टॉकिंग अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर्स। हमारे स्कूल में सर ने, हसमुख सर ने एक ड्रिल कंडक्ट किया था जिसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो हमारी स्कूल में है, ABC सिलेंडर है, CO2 टाइप है, तो उसको यूज़ करके उन्होंने दिखाया था, एक ड्रिल दिखाया था, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था कि फायर अगर लगता है तो उसको बुझाने के लिए कैसे हम लोग ये यूज़ करते हैं, राइट? सो यू मस्ट हैव गॉट दिस आइडिया। सो लेट अस स्टडी फर्दर। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ कौन सी यूज़ होती है फायर को बुझाने के लिए? वाटर, क्योंकि वो टेम्परेचर को नीचे ले आता है, ठंडा कर देता है उसको, दैट इज़ वाई। एंड उसको ऑक्सीजन तो मिलता है, पानी में से भी मिलता है, तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई तो कट ऑफ नहीं होता है, बट इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर डाउन। सो इन सम केसेस वाटर इज़ यूज्ड एज एन एक्सटिंग्विशर बट नॉट ऑल, राइट? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फायर लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वाटर यूज़ नहीं होता, क्योंकि वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे क्या होगा, शॉक लग सकता है फायरमैन को, जो कंट्रोल करने आए उनको ही शॉक लग सकता है, राइट? But water works only when things like wood and paper are on fire. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. जो लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको शॉक लग सकता है, बिकॉज पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, राइट? सो इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर बना हुआ है शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी से, वहाँ पे पानी नहीं चलता है फायर बुझाने के लिए, राइट? वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। क्यों ऐसा होता है ये हमने स्टडी किया। कोल एंड पेट्रोलियम में क्या स्टडी किया हमने, अर्थ के सरफेस में भी पानी के ऊपर कोल एंड पेट्रोल तैरता है, बिकॉज कोल एंड पेट्रोल आर लाइटर देन वाटर। वाटर हैवी है, राइट? तो वो नीचे बैठ जाएगा। अगर कोल और पेट्रोलियम, ये ऑयल और पेट्रोल वाला जो फायर लगा हुआ है, उसके ऊपर आप वाटर स्प्रे करोगे तो क्या होगा, ऑयल और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और जलता ही रहेगा और पानी नीचे बैठ जाएगा, तो कोई भी फ़ायदा होगा नहीं, वो जलता ही रहेगा। सो हियर ऑल्सो यू कैन नॉट यूज़ वाटर एज एन एक्सटिंग्विशर, right? Further, do you recall that water is heavier than oil? Yes, so it sinks below the oil and oil keeps burning on the top. ये वो गल्फ में हुआ था, वो सद्दाम हुसैन ने सब ऑयल वेल्स लीक करवा दिए थे, तो दैट ऑयल वॉज फ्लोटिंग ऑन वाटर और उसमें आग लग गई थी। कितने टाइम तक वो आग जलती रही थी और उसमें कितने सारे बेचारे एक्वेटिक एनिमल्स मर गए थे, डैमेज हो गया था सब, सी के अंदर पूरा ऑयल स्पिल हो गया था, राइट? दिस वॉज लॉन्ग बैक, काफ़ी सारे साल पहले की बात है ये। सो दिस वॉज द केस, राइट? बिकॉज क्यों, क्योंकि ऑयल लाइट होता है, ऑयल या पेट्रोल सब हल्का है वाटर से, तो वाटर नीचे बैठ जाता है और ये सब ऊपर तैरता रहता है। अगर उसमें आग लगी हुई है तो वो आग ऑलरेडी जलती रहेगी, वो पानी से नहीं बुझेगी। ओके, for fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide is used as a fire extinguisher. It is the best extinguisher. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो फायर जल रहा है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के वो जलता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप स्प्रे करते हो ना, तो ये बर्निंग मटेरियल के ऊपर वो पूरा एक लेयर बना देता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट द फायर इज़ एक्सटिंग्विश, वो फायर बुझ जाता है, वो पूरा एक परत जमा देता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ not helping the fire to burn, oxygen उसको चाहिए, right? That is why carbon dioxide is considered as an excellent fire extinguisher. और कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स भी ऐसे आते हैं, CO2 सिलेंडर्स बोलते हैं उनको,
दूसरे होते हैं वो ABC सिलेंडर्स होते हैं, पाउडर सिलेंडर, उसमें ये होता है, पाउडर होता है। पाउडर कौन सा आता है, वो ये इसका बेकिंग सोडा का, राइट। उससे क्या होता है, वो जब आप स्प्रेड करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर ओवर द फायर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ABC में पाउडर होता है, पाउडर वो ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो भी ये सोडा होते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। एंड दिस इज गैस सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, गैस वाला भी कॉम्प्रेस्ड भी आता है, राइट। उसमें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही फिल किया हुआ होता है। Further, carbon dioxide being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. Right? Oxygen को contact में वो आने नहीं देता है. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचने देता है वो, राइट। पानी डालोगे तो क्या होगा, वो सब भड़का हो जाएगा उसके अंदर, तो वो आप कार्बन डाइऑक्साइड से रूल आउट कर सकते हो। दिस इज़ द रीज़न वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एक्सलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। ओके, अंडरलाइन ऑल दीज पॉइंट्स. Then how do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as liquid in cylinders. ऐसे लिक्विड सिलेंडर्स होते हैं compressed वाले, जब आप ऊपर से प्रेशर रिलीज करते हो, वो नोजल दबाते हो, तो प्रेशर रिलीज होने की वजह से वो गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, राइट। एंड इट गेट्स स्प्रेड ऑन द इक्विपमेंट, ये आपका फायर, ओके. How do you get supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a liquid in cylinders. In what form is the LPG stored in cylinders? When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume. एकदम से वो spray होता है, enormously वो expand करता है volume में, and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. वो फ्यूल का टेम्परेचर तुरंत डाउन करता है, ऑक्सीजन को कांटेक्ट में नहीं आने देता है. तो दो चीज़ जो हमको अचीव करनी है, फ्यूल को हम हटा नहीं सकते हैं, राइट. तो ये दो चीज़ जो हमको अचीव करनी है, वो बर्निंग रुकने के लिए, फायर रुकने के लिए, वो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड करता है. कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत फैल जाता है और पूरा एक परत जमा कर देता है फायर के ऊपर, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द फायर इज कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड. सो राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, दे आर इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई इट इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर. Another way to get carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, that is baking soda. मैंने बोला आपको सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप रिलीज़ करोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, वो ABC सिलेंडर्स जो पाउडर सिलेंडर्स बोलते हैं ना, उसमें ये पाउडर होती है, और वो आप स्प्रे करोगे. हमको पाउडर सिलेंडर का ही एक्सपेरिमेंट हसमुख सर ने दिखाया था ग्राउंड पे, फायर एक्सटिंग्विशर का ड्रिल किया था तभी, राइट. तो वो स्प्रे करोगे तो अंदर से एक वाइट कलर का पाउडर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वो सेम काम करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर करता है. नियर द फायर these chemicals give off carbon dioxide, right, and because of that again it controls the fire, right. Okay, now types of combustion. Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe, right? क्या burning matchstick लेके आओ उसके पास में और नॉब को चालू करो तो क्या होगा, तुरंत फायर पकड़ेगा. We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. जैसे ही आप वो चालू करते हो गैस, वहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक लाते हो, तुरंत वो जलना शुरू हो जाएगा. एकदम से दूर, थोड़ा दूर होगा तो भी पकड़ लेगा वो, फायर कैच करेगा. दैट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन, और एकदम जलेगा. There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature, right. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. अपने आप जलता है. सोडियम भी अगर केरोसिन से निकाल के बाहर छोड़ दो
तो थोड़ी देर में जलने लगेगा, भड़का हो जाएगा उसका। क्यों? बिकॉज इट हैज़ गॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पानी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखना पड़ता है। तो केरोसिन में से बाहर निकाल के उसके ऊपर से केरोसिन एक टिश्यू पेपर से पोंछ के उसको खुला छोड़ दोगे तो जलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही, राइट? वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियसली बर्निंग. It reacts with the oxygen present in the air and it starts burning. This is called spontaneous burning. Okay. Now, further, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. Coal mines में जहाँ पे coal dust मिलता है, पाउडर हो जाता है कोल का, वो एकदम से कभी जल गया तो उसकी वजह से बहुत सारा फायर हो जाता है कोल माइंस में, जो कोयले की खान होती है वहाँ पर, राइट? डिजास्ट्रस होता है। और वो spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun and due to lightning strike. lightning strike होती है जंगल में ट्रीज़ के ऊपर, उसकी वजह से कभी कभी फायर लग जाता है, या ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, सन की वजह से बहुत गर्मी होती है तो भी पेड़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिस के भी फायर लग जाता है, राइट? हाउएवर, most forest fires are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. अगर आप कहीं फॉरेस्ट में कैंप फायर करने गए हो तो इट इज़ एसेंशियल कि आप वो ये फायर को पूरी तरह से बुझा के फिर वो जगह को छोड़ो, अदरवाइज इट माइट रिजल्ट इन टू फॉरेस्ट फायर, राइट? सो इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू keep the forest safe. We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion, right? Explosion कौन सा है? Heat, light, and sound तो आता ही है, पर a large amount of gas is formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अगर ज़्यादा आप उसको दबाने का कोशिश करोगे तो वो जो पाउडर होता है अंदर, इट इज़ फॉस्फरस होता है, सल्फ़र होता है, सल्फ़र या फॉस्फरस दोनों में से कुछ एक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट विल रब विथ ईच अदर एंड इट माइट इग्नाइट, वो फायर हो सकता है, राइट? सो उसको ज़्यादा प्रेशर भी आप नहीं दे सकते हो, बिकॉज इट बर्न्स with an explosion. It makes a sound, heat energy is released, and light energy is also released. Okay, now this is a flame. What is a flame? That we will do it next time. Whatever points I have made you underline, please write them in your notebook as important points about these fire extinguishers, and read this part of the lesson once again so that you be clear on that what I have explained over here. You can also re-listen to this video what I have recorded, and I think at the end of the lesson I will share an animated video which would make you clear more about the concepts explained in this lesson. We stop here today.